Pankaj and Kushi for their contribution. Now I would like to invite Kushi and Arpita to present song. Now I would like to call the students of class 6 and 7 presented the dance.
Yes, your answer will be on this day. Our constitution came into force, although the constitution came into existence on 26 November 1949. Then why we celebrate Republic Day on this day and why we implemented our constitution on this day only? Because this day have its own significance. On 26 January 1930, the Indian National Congress declared Swaraj or complete independence of the country from foreign rule. This proclamation enjoined the members of Congress as well as the band of Indian nationalists to fight for the independence of the country. It was also decided that this day shall be celebrated as Independence Day of the country. Later, when India got its independence on another day, 15 August 1947. So it was decided that the Constituent Assembly would enforce the Constitution on 26 January 1950. So that we all remember the spot of that day. Therefore, on this day our Constitution was adopted. The Constitution is the basic principles and laws of a nation. State or the social group that determines the powers and duties of the government and guarantees certain rights to people in it. Our constitution framers had very long sight. They made largest constitution for the largest country of the world. The predictions were made by the other countries that this country would not remain independent or as one nation for a long because of its large population with many differences like religion, caste, etc. And its all constitution would also be failed, but we all are celebrating 73rd Republic Day of the nation, so this is very proudful moment for all of us. Constitution enshrines us many rights like right to equality, liberty, justice, right to speech, right to education and so forth with some duties. Therefore, we are so thankful to constitution makers that they gave us this type of constitution which free us from the chains of inequalities and which also give us the self-confidence to take our nation on the hunt. At last, I want to thank you all to listening me very patiently. Thank you once again. Now I would like
वंदे मातरम। आज हम 26 जनवरी का पर्व मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन संविधान बना था और उसकी घोषणा हुई, फिर लागू भी किया गया। आज हम कोविड को देखते हुए बिना छात्रों के द्वारा यह मना रहे हैं, बिना अभिभावक के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय परिवार बना रहा है। मैं विशेषकर स्पेशल बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, किसी भी प्रकार से वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सरकारी नियमों की पालना करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है और शिक्षा लेनी है। ये कोविड-19 जो चल रहा है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इसके साथ में हमको जीना पड़ेगा तो अपन को विद्यालय भी आना जाना रहेगा, कहीं आना जाना भी रहेगा, तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। नो मास्क वाली भी चीज़ हम पे लागू होती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा सभी को आज एक दिन की पावन हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Respected director sir, principal sir, talented teacher and all students, we are gathered here to celebrate 26 January as a national festival. India was on this day. India was its constitutions. Before 26 January 1958, we were following the rules and laws set by the British. Since 26 January 1950, we have our own laws and rules. Those are implemented to all Indians, and our country became republic. Republic means that all the citizens of country have all the supreme power to elect their representative. Our country constitutes our constitutions give us same rights despite any different of religions, colors, and language. On this day, our country turned into secularism, democratic, and republic. And this day give message equality, harmony, and solidarity. Thank you. Now I would like to call the students of class 8 to present the dance. different forms of pyramid. Go.
Doctors in our country have played an important role in the pandemic. So now the students of class 9 will present a dance performance to pay a tribute to all the doctors of our country. Now let's welcome them on the stage. जवान अपनी जान की बाजी लगा सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर से रोज मौत से हाथ मिलाकर रखते हैं। Now I would like to call Tarachan sir and Kavita ma'am to enhance our knowledge on Republic Day. Good morning, everyone. First, I would like to wish one and all a happy 73rd Republic Day. Before me, there were a lot of speakers who spoke a lot of things about Republic
like event held Parvati Raya enlightened us the formation of the constitution and how the framework was designed. It must have been brainstorming the constitution makers to design a constitution which will be adopted by all the citizens, and it is effective after 72 years of formation. On this day, I also would like to pay homage to Dr. Bimrao Ambedkar, who also known as Father of our Constitution. I really admire how Bimrao, as a student, faced difficult time to complete his education. But today, because of him, we all are free and despite of caste and religion. We can take education of our choice. So I would like to request all the students to take advantage of this opportunity given by our Constitution and design your career as your choice. Thank you. सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन एवं मेरे आदरणीय गुरुवर को सादर प्रणाम एवं मेरे सहकर्मी प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस राष्ट्र पर्व पर उन सभी देश की स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। यह दिन जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि की प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। जैसे इसके बारे में मैं आपको 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश कभी आजाद हुआ, आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से यह भारत गणतंत्र हुआ। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, एकत्रित हुए, तो ये गणतंत्र दिवस है क्या? इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। गण का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है और सरकार लोगों की होती है। लेकिन क्या कह देने भर से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं। उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया तो चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हो, पर उनसे भी बड़ा हो, जो न्याय का आधार हो। इसलिए आजादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर अभी संविधान पारित हुआ है, लागू नहीं। लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख जो कि 26 जनवरी 1950। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी हृदय से नमन करती हूँ। किंतु आज हम सभी कहाँ आकर खड़े हो गए? यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों
दिला तेरिया तो लगदा यारा गल गल दे शकदे दिल बार जरा भी नहीं हम तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है तेरे के तुम जा किसे दा सहारा वे तू मैनू छड्डदा रूठी है शब्द रब्बा रब्बा दिल में है रूठा सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा चुप गाई चुप है राजा ओ घर कैसे राजा ओ घर कैसे राजा राजा कैसे राजा कैसे राजा चुप गाई चुप है राजा Now I would like to call Durga ma'am and Sangeeta ma'am to come on stage. सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहकर्मी और विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस शुभ अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चिट्ठी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत यूं ही बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना मोती सहजी गहरे पानी में, मिलते ना मोती सहजी गहरे पानी में, बढ़ता गुना उसका इसी हैरानी में, बढ़ता गुना उसका इसी हैरानी में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। आखिर कुछ किए बिना ही जगह काज नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ मैं आप उन समस्त शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तुम चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को तुम सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को तुम सदा दिल में बसाए रखना। जिंदगी की इस डगर पे, जिंदगी की इस डगर पे रुसवाई नहीं मिलती। कौन कहता है भीड़ में तन्हाई नहीं मिलती, कौन कहता है भीड़ में तन्हाई नहीं मिलती। और अगर मोहब्बत ही करनी है तो वतन से करो, क्योंकि इस मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं मिलती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक गणेश पाटिल, अभिभावकों वगैरह, मैं आज आप सभी को गणतंत्र
Academy, Mr. Clive D'Souza, to address us. Good morning, everyone. Happy 17th Republic Day to all the parents, teachers, and to my dear students. Today, we are conducting this virtual program of Republic Day celebration because of the guidelines issued by the Rajasthan government in order to prevent Omicron virus. But now, this is the third year we are facing the coronavirus. Our education industry has got most impacted by this virus. So it is necessary for us to move a step ahead. So we have decided not to put a full stop on this Republic Day celebration and to move ahead. In this session only, we started our online classes. Last time during the 15th August, we had a live program of Independence Day. So this is the step ahead to celebrate the Republic Day virtually. Today we are celebrating the Republic Day because on this day our Constitution came into force. The Constitution of India is the backbone of our country, which will help us to remain intact even we are having so many cultural and religious diversities. It also gives us a deep understanding about how we as a citizen should perform our duties towards our country. I believe that we all should respect the constitution makers and help everyone to make India great again. I would also like to thank our cabinet members, Sandeep and Yes Soni, for their special contribution and for making this event a great one. Thank you. Now I would like to call upon Director Sir Mr. Ukam Singh Rathod to address us. वंदे मातरम साथियों, आज 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये जो कार्यक्रम, इस प्रकार का कार्यक्रम अपने विद्यालय में ये प्रथम बार मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से सरकार की गाइडलाइन अनुसार ही कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बार सरकार का, राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन यही है कि विद्यार्थी घर पे रहेंगे और सारे स्टाफ लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाएंगे। उसके अनुरूप इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। आपके प्रिंसिपल, आपके स्टाफ सब लोगों ने मिलकर के आप लोगों का सुबह से मैं ये देख रहा हूँ, ये कार्यक्रम जो ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई। कितना अच्छा कार्यक्रम आप सब ने तैयार किया। सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है उसके अनुरूप ही हम लोग सब अपना काम कर पाते हैं। ये कार्यक्रम आज का आप सब लोग मना रहे हैं, पुनः एक बार आप सबको और बधाई। साथ ही मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, जैसा कि सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का चल रहा है विद्यालय की ओर से, क्योंकि 10वीं 12वीं बोर्ड की क्लासें की तारीख गवर्नमेंट ने दे रखी है। 3 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहें और विद्यालय के पूर्ण रूप से संपर्क में रहें, ताकि समय समय पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित आ रही, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक चिंता की जा रही कि विद्यार्थियों का आखिर भविष्य किस प्रकार से हम तैयार कर सकें। तो मैं पूर्ण रूप से आप सबके साथ हूं और पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों में प्रयास कर रहे हैं कि आपको शिक्षा दी जाए और उसमें प्रयास किया जा रहा है और आप सबका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ पुनः आपको धन्यवाद। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोग खुशी के साथ मनाएं। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइडलाइन का हम सबको मिलकर के पालन करना है। मास्क अनिवार्य कर रखा है, तो सभी विद्यार्थियों से, सभी टीचर्स स्टाफ से मैं कहूँगा मास्क लगा करके विद्यालय में आए और अपनी क्लासों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, जितने भी प्रोटोकॉल बना रखे हैं सरकार ने, जहाँ तक हो सके उन सबको पूरा करें और पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।